Hello, my dear students. How are you? I think so you all are very fine. Okay, my dear students, myself Ravi Ravi, and today I will explain you the what is the polynomial, and today I will give you the that is called history of polynomial. Okay, so I think you all of you know very well what is variable, what is constant, but today I will explain you variable, constant, algebraic term, algebraic expression, and that polynomial. These are the connectivity of polynomial. These are variable, constant, algebraic terms, algebraic expression, and polynomial. How to connect it all of these things. Okay. So for one by one, I will explain you all of the things. Today, first of all, variable. Students, you know very well what is variable. I think you all of know very well. All the alphabets are variable. That is from class 8. It's so good. But in class 9 something is here. The alphabets which values are not fixed. ऐसे अल्फाबेट्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. सारे अल्फाबेट्स नहीं, ऐसे अल्फाबेट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेरिएबल कहते हैं. ये इट इज नॉट ऑल द अल्फाबेट्स ए टू जेड नहीं, सम अल्फाबेट्स की वैल्यू हम रखेंगे तो वो वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे. एंड सम अल्फाबेट्स विच वैल्यूज आर फिक्स्ड. कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं. एज एग्जांपल हमने दिखाया आपको कि जैसे 2 इज नॉट इक्वल टू 3. 2 कभी 3 के बराबर नहीं. हम लोग पहले से जानते हैं कि ऑल द न्यूमरल्स आर कांस्टेंट. बट इन क्लास बट हियर एस to Z, its S to Z represent variables and A to R alphabets represent constant. Okay, now here you see that x equal to 2, x equal to 3, z is equal to 4. कभी आपने ऐसा देखा है कि आपका x की वैल्यू 2 है तो हर बार x की वैल्यू 2 मिलेगा? ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होगा. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 3. 2 3 के बराबर कभी नहीं हो सकता. इट इज अ कांस्टेंट. इस कांस्टेंट की जगह हम अल्फाबेट्स को अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है. इसलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम लोग करते हैं कि ग्राफ में अगर हमने दिखाया है, ग्राफ को इस तरीके से दिखाया जिगजैग, तो ये आपका वेरिएबल ग्राफ मींस वेरिएबल हो गया. सी कांस्टेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हम वेरिएबल कांस्टेंट का देख सकते हैं. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल. दिस इज अ कांस्टेंट. दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज algebraic term. हाउ टू गेट algebraic term? Algebraic terms, variable and constant are also combined together, but when we combine two things, some things are needed to join it. ज्वाइंट करने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन करने के लिए ऑपरेटर होता है. इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. पूरे मैथमेटिक्स में ये 4 सिंबल्स होते हैं जिसको हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं. इन 4 ऑपरेटर में से 2 का यूज करके हम अलजेब्रिक टर्म बनाते हैं. कैसे? तो कॉम्बिनेशन of variable and constant using operator multiply and divide. Means when we combine the variable and constant, then we using the operator for multiply and divide it, then we get the algebraic term. Okay, now here we see that this is the constant, this is the variable, and here it is multiplying. This is the constant, this is the variable, and in between multiplication sign. Constant, variable, in between multiplication sign. Constant, variable, but here also variable, divide sign. Okay, so this is the algebraic term.
Okay, now and after that, how to get algebraic expression? Algebraic expression, the combination of algebraic term using operator plus and minus. अब यहाँ पे दो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, दो ऑपरेटर बचा, दो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये बन गया algebraic expression. जल्दीबाजी में हो गया. Combination of algebraic term using operator plus and minus. जब हम किसी भी algebraic expression को कंबाइन करते हैं प्लस और माइनस के साथ, तो हमें algebraic expression मिलता है. Algebraic expression, it's only the combination of algebraic term. It is not a polynomial. ये polynomial कभी भी नहीं होता है. अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता ये. ठीक, पॉलिनोमियल की एक अलग कंडीशन होती है बच्चों. पॉलिनोमियल की अलग कंडीशन है. पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं. फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है पॉलिनोमियल्स. ओके, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है पॉलिनोमियल. हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है. ओके, so how you get the polynomial? An algebraic expressions which variable power neither negative nor in fraction, means वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कभी भी. तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे. या हम कह सकते हैं कि वेरिएबल पावर ऑलवेज मस्ट बी इन होल नंबर, ये भी हो सकता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक ऑल ऑफ नो वेरी वेल हिस्ट्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.